بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں ایک سوداگر تھا، بصرہ کا رہنے والا، بڑا مالدار۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ اللہ کا کرنا کہ وہ تاجر مر گیا، خدا اس پر رحمت کرے، اور ساری دولت وارثوں کے لیے چھوڑ گیا۔ دونوں بیٹوں نے باپ کی تجہیز و تکفین کے بعد مال و اسباب آپس میں برابر برابر تقسیم کر کے دکانیں کھول لی۔ ایک پیتل کے برتن بیچنے لگا اور دوسرے نے سونار کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن یہ سونار اپنے ٹھیے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اجمی بازار کی سیر کرتا ہوا اس کی دکان پر پہنچا اور اس کی کاریگری دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس سونار کا نام حسن تھا۔ اجمی اپنا سر ہلانے لگا اور کہا کہ قسم خدا کی تو بڑا اچھا سونار ہے۔ وہ حسن کی کاریگری کو دیکھ رہا تھا۔ حسن اپنے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب لیے پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کے حسن و جمال پر مہو تھے۔ جب عصر کا وقت ہوا اور دکان لوگوں سے خالی ہو گئی تو اجمی نے حسن کے پاس آ کر کہا، بیٹا تو بڑا خوشرو جوان ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو بے باپ کا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں۔ مجھے ایک کاریگری آتی ہے جس سے پڑھ کر دنیا میں کوئی ہنر نہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا، مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں سکھا دوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی سکھانا پسند نہ کیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے سکھا دوں اور تجھ کو اپنا بیٹا بنا لوں، تاکہ فکر و فاقے سے تجھے نجات ملے اور اس پیشے سے تیرا پیچھا چھوٹے جس میں نہائی اور ہتھوڑا بھٹی اور آگ کی تکلیف ہے۔ حسن نے پوچھا کہ اے میرے آقا، تو مجھے کب سکھائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں کل تیرے پاس آ کر تیرے سامنے پیتل سے خالص سونا بناؤں گا۔ حسن یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اجمی سے رخصت ہو کر اپنی ماں کے پاس گیا، سلام کیا اور اس کے ساتھ کھانے کے بعد نہایت حیرانی سے اجمی کا سارا ماجرا سنایا۔ ماں نے کہا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کی باتیں نہ مانا کر، خاص کر اجمیوں کی بات تو ہرگز نہیں سننی چاہیے، کیونکہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں اور کیمیا گری جانتے ہیں۔ لوگوں کو جال میں پھانس کر ان کا مال لے اڑتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں۔ حسن نے کہا، اماں ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ کوئی اس کے لالچ میں ہم کو جال میں پھانسے گا؟ اور یہ اجمی تو ایک بوڑھا ہے، نیکی اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے، خدا نے اسے میرے اوپر مہربان کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں مارے غصے کے چپ ہو گئی، مگر بیٹے کا دل اسی میں لگا رہا اور مارے خوشی کے وہ رات بھر سویا ہی نہیں۔ جب صبح ہوئی تو حسن اٹھا اور کنجیاں لے کر دکان کھولی ہی تھی کہ اجمی آ پہنچا۔ حسن اٹھ کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ چومے، لیکن اس نے اسے روک دیا اور اس بات کو پسند نہ کیا۔ حسن سے کہا کہ وہ ٹھالی کو آگ پر رکھ اور دھوکنے لگا۔ حسن نے اجمی کے کہنے کی تعمیل کی اور کوئلے دکھائے۔ اجمی بولا، بیٹا تیرے پاس پیتل ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے۔ اجمی نے کہا، اسے کینچی سے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر۔ حسن نے اس کے کہنے کے مطابق اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے اور انہیں گٹھالی میں ڈال کر دھوکنی سے ہوا دینی شروع کی، یہاں تک کہ وہ پگھل کر پانی ہو گئے۔ اب اجمی نے اپنا ہاتھ پگڑی کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکالا اور آدھے درہم کے برابر کوئی صفوف نکال کر گٹھالی میں ڈال دیا۔ یہ صفوف زرد سرمے کی طرح کا تھا۔ اب اس نے حسن سے کہا کہ اور دھوک۔ حسن اور دھوکنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ یہ دیکھ کر حسن کے ہوش و حواس مارے خوشی کے جاتے رہے۔ وہ اس ٹکڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور اسے چھری سے کھرچ کر دیکھا تو عمدہ قسم کا کندن تھا۔ اس کی مسرت کا کیا پوچھنا، چاہتا تھا کہ جھک کر اجمی کا ہاتھ چوم لے۔ اجمی نے اسے روک دیا اور کہا، اس ٹکڑے کو بازار میں لے جا اور بیچ کر دام کھڑے کر، مگر کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے۔ حسن نے بازار میں جا کر وہ ٹکڑا دلال کو دیا۔ دلال نے اسے لے کر کسوٹی پر لگایا اور دیکھا کہ وہ خالص سونا ہے۔ 10,000 درہم سے اس کی بولی شروع ہوئی۔ سوداگر بڑھ بڑھ کر بولی بولنے لگا، یہاں تک کہ 15,000 درہم تک دام لگ گئے۔ گھر جا کر حسن نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اماں میں اس صنعت کو سیکھ گیا ہوں۔ ماں ہنسی اور کہنے لگی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول پڑھ کر مارے غصے کے چپ ہو گئی۔ حسن بھولے پن سے ایک ہاون دستہ لے کر اجمی کے پاس گیا جو دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو اس ہاون دستے کا کیا کرنا چاہتا ہے؟ حسن نے جواب دیا کہ اس کو بھی آگ پر پگھلا کر سونے کے ڈلے بنا لے۔ اجمی ہنس کر بولا، بیٹا کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے کہ تو ایک ہی دن میں 2 سونے کے ڈلے لے کر بازار جائے گا؟ تجھے معلوم نہیں کہ لوگ ہم سے بدزن ہو جائیں گے اور ہمیں مار ڈالیں گے؟ بیٹا جب تم مجھ سے یہ فن سیکھ جائے تو اسے سال میں ایک بار سے زیادہ مت کیجیے، اور وہ تیرے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک کافی ہوگا۔ حسن کہنے لگا، اے میرے آقا تو ٹھیک کہتا ہے، اور دکان میں بیٹھ کر اس نے گٹھالی آگ پر چڑھا دی اور بھٹی میں کوئلے ڈال دیے۔ اجمی نے کہا، بیٹا اب تیرا کیا مطالبہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ فن مجھے سکھا دے۔ اجمی نے ہنس کر کہا،
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बेटा तू बड़ा काम अकल है और इस फन के सीखने के बिल्कुल नाकाबिल। कभी कोई इस फन को बीच सड़क पर या बाजारों में सीख सकता है? अगर हमने इस जगह ये काम शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे कि हम कीमियागर हैं, और जब इसकी खबर हुकाम तक पहुंचेगी तो वो हमारी जान के गाहक हो जाएंगे। बेटा अगर तू ये काम सीखना चाहता है तो मेरे घर चल। हसन ने उठकर दुकान बंद की और अजमी के साथ हो लिया, मगर रास्ते में उसे अपनी माँ की बात याद आ गई और उसके दिल में कशमकश होने लगी। वो देर तक सर नीचे किए खड़ा रहा। जब अजमी ने देखा कि वो रुक गया है तो हंसा और बोला, तेरा दिल तो नहीं उलट गया? अगर तू समझता है कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा तो फिर मेरे दिल में तेरी तरफ से क्यों कर भलाई आ सकती है? अगर तू मेरे घर से डरता है तो मैं तेरे घर चलकर वहां तुझे सिखा सकता हूँ। हसन ने कहा, हाँ चाचा। अजमी बोला कि अच्छा मेरे आगे आगे चल। हसन आगे आगे अपने घर की तरफ चला और अजमी पीछे पीछे हो लिया। घर पहुंचकर हसन अंदर गया और माँ से मिलकर कहा कि अजमी मेरे साथ आया है और दरवाजे पर खड़ा है। माँ ने फर्श बिछाया और मकान को आरास्ता करके वहां से चली गई। उसके बाद हसन ने अजमी से कहा कि अंदर आ जा, और वो अंदर आ गया। हसन हाथ में एक प्याला लेकर बाजार गया ताकि खाने के लिए कोई चीज ले आए, और खाना लाकर अजमी के आगे रख दिया और कहा, ये मेरे आका, आइए पहले कुछ नोश फरमा लीजिए ताकि हमारे दरमियान रोटी और नमक का वास्ता हो जाए, और हम में से जो कोई रोटी और नमक के बारे में खयानत करे खुदा उससे निमटे। अजमी बोला कि बेटा तू सच कहता है, और फिर मुस्कुराकर कहा कि बेटा रोटी और नमक का पास करता कौन है? उसके बाद अजमी आगे बढ़ा और हसन के साथ बैठकर खाना खाया, यहाँ तक कि दोनों सीर हो गए। अजमी ने कहा कि बेटा हसन, हमारे लिए मिठाई ला। हसन अजमी की यह बात सुनकर खुश हो गया और बाजार जाकर 10 किस्म की मिठाई ले आया और उसके आगे रख दी। दोनों ने मिलकर मिठाई खाई। मिठाई खा चुके तो अजमी ने कहा, खुदा तुझे इस नेकी का बदला दे। वाकई तू ऐसा शख्स है कि लोग तेरा साथ दे, अपने भेद तुझ पर जाहिर करें और तेरे फायदे की बातें तुझे सिखा दे। फिर अजमी बोला, ए हसन बेटा सामान ले आ। हसन को इन बातों का यकीन न आता था। तहाँ वो तेजी से रवाना हुआ और दुकान पहुंचकर उसने सारा सामान लिया और वापस आकर उसे अजमी के आगे रख दिया। अजमी ने कागज की एक पुड़िया निकाली और कहने लगा, ए हसन, रोटी और नमक की कसम, अगर तू मुझे मेरे बेटे से ज्यादा अजीज ना होता तो तुझे मैं ये फन न सिखाता। इस वक्त मेरे पास महज यही अक्सीर बाकी है जो इस कागज में है, लेकिन सबर कर, मैं जड़ी बूटियों को मिलाकर तेरे लिए अक्सीर बना दूंगा। ए मेरे बेटे, ए हसन, सुन, जो अक्सीर इस कागज में है इसका निसफ दरहम 5 सेर पीतल के लिए काफी है, जो उसे 5 सेर खालिस सोना बना देगा। ए मेरे बेटे हसन, इस कागज में 1.5 चट्टान अक्सीर है, जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं तुझे और बना दूंगा। हसन ने कागज की पुड़िया को लेकर देखा। उसे उसमें पहले से भी उम्दा कोई पीली चीज नजर आई। कहने लगा, ये मेरे आका, इसका नाम क्या है? ये कहाँ पाई जाती है और किस तरह बनाई जाती है? अजमी हसन का बढ़ता हुआ लालच देखकर हंसा। उसने कहा, आखिर तू कितनी बातें पूछेगा, चुपचाप अपना काम किए जा। हसन घर में से जाकर एक रुकाबी ले आया और उसके टुकड़े टुकड़े काट कर कोठाली में डाल दिए। जब वो पिघल गए तो पुड़िया की थोड़ी सी दवा लेकर डाल दी और वो खालिस सोना हो गया। हसन बाग बाग हो गया। सोने के डल्ले ने उसकी अकल को चक्कर में डाल दिया। अब अजमी ने अपनी पगड़ी में से तेजी के साथ एक थैली निकाली जिसमें कोई ऐसी नशावर चीज थी कि अगर उसे हाथी भी सूंघ लेता तो एक दिन से दूसरे दिन तक सोता रहता। उसने उसमें से थोड़ी सी लेकर चुपके से मिठाई में मिला दी और कहा, ए हसन, अब तू ही मेरा बेटा है और मेरे जानो माल से ज्यादा अजीज है। मेरी एक बेटी है, उससे मैं तेरा निकाह कर दूंगा। हसन ने कहा, मैं तेरा गुलाम हूँ और जो भी भलाई तू मेरे साथ करेगा वो खुदा के पास जमा रहेगी। अजमी ने कहा कि बेटा सब्र से काम ले, फिर तेरे लिए भलाई है। यह कहकर उसने वो मिठाई हसन को दी। उसने उसका हाथ चूमकर उसे अपने मुंह में रख लिया। उसे क्या खबर थी कि गायब में उसके लिए क्या पोशीदा है। मिठाई का निकलना था कि उसका सर उसके पांव से आगे आगे चलने लगा और वो दुनिया से गायब हो गया। जब अजमी ने देखा कि बला हसन के ऊपर नाजिल हो चुकी है तो बहुत खुश हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, ए मरदूद, ए अरब कुत्ते, आखिर तू मेरे जाल में फंस गया। ए हसन, मैं कई साल से तेरी तलाश में था और अब तू काबू में आ गया है। बिला के तू मेरी जाल में फंस गया और अपनी कमर कसी। उसने हसन की मशकें बांधी, हाथ पांव मिलाकर बांध दिए और एक संदूक लिया। उसे खाली करके उसमें हसन को बंद किया और कुफल डाल दिया। फिर उसने दूसरा संदूक खोला, उसकी सारी चीजें निकाल फेंकी और हसन का सारा माल मता सोने के दोनों डल्लों समेत संदूक में भरा। बाजार से हमाल को लाया, उस पर दोनों संदूक लादे और उन्हें शहर के बाहर ले जाकर समंदर के किनारे उतारा। वहां एक कश्ती लंगर डाले खड़ी थी। उस कश्ती में गुलाम थे और नाखुदा उसका इंतजार कर रहा था। जब मलाहों की नजर उस पर पड़ी तो वो उसके पास आए और दोनों संदूकों को ले जाकर कश्ती में रख दिया।
आदमी ने नाखुदा और सब मलाहों को पुकार कर कहा कि तैयार हो जाओ, हमारी हाजत पूरी हो चुकी है और मुराद बार आई है। नाखुदा ने मलाहों से कहा कि लंगर उठाओ और बादबान खोल दो। हवा मुवाफिक थी, कश्ती चल निकली। ये तो अजमी और हसन का किस्सा हुआ। अब हसन की माँ का हाल सुनो। उसने इशा के वक्त तक इंतजार किया, मगर जब न उसे कोई खबर मिली, बल्कि आवाज तक न सुनाई दी, तो वो घर को खुला देखकर उसके अंदर आई। उसने देखा ना वहां कोई शख्स है, न संदूक, न माल। उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा खो गया और जो किस्मत में बदी थी पूरी हो गई। वो अपना मुंह पीटने लगी, कपड़े फाड़ डाले और वावेला करना शुरू कर दिया। कभी रोती, कभी कहती कि हाय मेरे बेटे और मेरे दिल के फूल। जब वो सुबह तक इसी तरह रोती रही तो पड़ोसियों ने आकर उसके बेटे का हाल पूछा। उसने वो सारा माजरा बयान कर दिया जो उसे अजमी के साथ पेश आया था, और उसे यकीन हो गया कि वो अब अपने बेटे को न देख सकेगी। वो घर में दीवानों की तरह फिरती और वो उसी तरह रोती पीटती रही। पड़ोसियों ने दुआ की कि उसे सब्र आ जाए और उसका बेटा मिल जाए, और उससे रुखसत होकर चले गए। मगर वो दिन रात बराबर रोती रही और घर के बीच में एक कब्र बनाकर उस पर हसन का नाम और उसके खो जाने की तारीख लिख दी। वो हमेशा उसी कब्र के पास पड़ी रहती, और जिस दिन से उसका बेटा उससे जुदा हुआ था उसका यही दस्तूर था। ये तो माँ का किस्सा हुआ। अब सुनो कि हसन को अजमी के साथ क्या माजरा पेश आया। यह अजमी मजूसी था। मुसलमानों से उसको बड़ी नफरत थी। जब उसका दाव किसी मुसलमान पर चल जाता तो उसे बेतबाह किए न छोड़ता, क्योंकि वो खबीस और मलून और खुद गर्ज कीमियागर था। इस मरदूद का नाम बहराम मजूसी था। वो हर साल किसी न किसी मुसलमान को पकड़कर किसी खास मतलब के लिए जिबाह कर डालता था। जब उसकी चाल सुनार हसन पर चल गई और वो उसे लेकर चला सुबह से शाम तक, और फिर शाम से दूसरी सुबह तक चलने के बाद कश्ती ने एक साहिल पर लंगर डाला। दम लेकर कश्ती आगे चली। जब दिन निकल आया तो अजमी ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो संदूक ले आए जिसके अंदर हसन बंद है। वो ले आए तो उसने संदूक खोलकर हसन को निकाला, उसे सिरका सुंघाया और उसकी नाक में कोई सफ़ोफ फूका। हसन को छींक आई और जो चीज मिठाई में मिलाकर उसे खिलाई थी केक के जरिए से बाहर निकल गई। हसन आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वो बीच समंदर में है, कश्ती चली जा रही है और अजमी उसके पास बैठा हुआ है। उसे यकीन आ गया कि अजमी का फरेब कारगर हो गया और वो उसी बला में गिरफ्तार है जिससे उसकी माँ उसे डराती थी। उसने लाहौला पढ़कर खुदा से दुआ मांगी, ए आलिमों के परवरदिगार, मेरी तकदीर में मेहरबानी से काम ले और अपने इम्तिहान में मुझे सब्र अता कर। उसके बाद उसने अजमी की तरफ नरमी के साथ मुखातिब होकर कहा, ए मेरे वालिद, ये तूने क्या हरकत की और क्या हुआ उस रोटी और नमक को, और कहाँ गई वो कसम जो तूने मेरे साथ खाई थी। अजमी ने आंखें निकाल कर कहा, कुत्ते, क्या दुनिया में लोग रोटी और नमक का पास करते हैं? मैंने तेरी तरह एक कम 1000 लोगों को कत्ल किया है और तेरे बाद पूरे 1000 हो जाएंगे। ये कहकर उसने हसन को डांटा। हसन ने जुबान रोक दी। हसन को यकीन हो गया कि किस्मत का तीर उसे आ लगा है। अजमी मलून ने अब हुक्म दिया कि उसकी मशकें खोल दी जाए और लोगों ने उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना शुरू किया। मजूसी हंस रहा था और कहता जाता था कि आग और रोशनी, साये और गर्मी की कसम, मैं ये ना समझता था कि तू मेरे जाल में फंस जाएगा, लेकिन आग के तुफैल मैंने तुझ पर काबू पा लिया और उसकी मदद से तुझे दान कर लिया, यहाँ तक कि मेरी हाजत पूरी हो गई। अब मैं घर वापस जाकर तुझे आग पर कुर्बान करूंगा ताकि वो मुझसे राजी हो जाए। हसन ने कहा, तूने रोटी और नमक के मामले में मुझसे खयानत की। वो शायद कुछ और भी कहता, लेकिन मजूसी ने हाथ उठाकर उसे ऐसी 2 हथड़ मारी कि उसके दांत जमीन पर गिर गए। उस पर गशी तारी हो गई और उसके आंसू बहने लगे। मजूसी ने अपने गुलामों से कहा कि आग जला। हसन ने पूछा कि तू आग में जलाकर क्या करेगा? उसने जवाब दिया कि यह आग रोशनी और चिंगारियों की साथी है और मैं इसकी इबादत करता हूँ। अगर तू भी मेरी तरह उसकी पुरस्तिश करे तो मैं अपनी आधी दौलत तुझे दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा। हसन ने उसे डांट कर कहा कि ए मरदूद, तू काफर मजूसी है और उस खुदा को छोड़कर जिसने दिन रात पैदा किए हैं आग को पूजता है। इन्हीं वजहों से तमाम मजहबों पर मुसीबत आई है। ये सुनकर मजूसी तेश में आ गया और कहने लगा कि ए अरब कुत्ते, क्या तू मेरा कहना न मानेगा और मेरे मजहब की पैरवी न करेगा? लेकिन हसन ने बिल्कुल उसकी बात न मानी। मलून मजूसी ने उठकर आग के आगे सजदा किया और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि हसन को ऊंधा लिटाए, और जब उन्होंने उसे पलट दिया तो मजूसी ने उसे ऐसे कोड़े से मारना शुरू किया जो चमड़े के तस्मों से गुंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी खाल फट गई। वो दुहाई देता लेकिन कोई उसकी दुहाई न सुनता। वो मदद के लिए चिल्लाता मगर कोई उसकी मदद को ना आता। बिलाखिर उसने अपनी नजर ऊपर खुदा की तरफ उठाई और उसे रसूलुल्लाह का वास्ता दिया। उसका सबर जाता रहा। आंसू रुखसारों पर मीने की तरह बरसने लगे। मजूसी ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि उसे बैठाए और उसके आगे खाना पीना रखे। गुलाम खाना पीना ले आए
लेकिन हसन ने दाना खाया ना पानी पिया। मजूसी रास्ते भर उसे दिन रात तकलीफें देता, वो सब्र करता। जितना हसन खुदा के आगे गिड़गिड़ाता, मजूसी का दिल उसकी तरफ से सख्त होता जाता। इसी तरह वो 3 महीने तक समंदर में सफर करते और हसन को तकलीफ पहुंचाते रहे। जब पूरे 3 महीने गुजर चुके तो खुदा की तरफ से एक आंधी आई। समंदर तारीक हो गया, कश्ती उछलने लगी। ना खुदा और मलाहों ने कहा कि खुदा की कसम, हम पर इसी लड़के का सबर पड़ा है जिसे मजूसी 3 महीने से तकलीफ दे रहा है। खुदा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। ये कहकर उन्होंने मजूसी पर धावा बोल दिया, उसके गुलाम और साथियों को मार डाला। जब मजूसी ने देखा कि उसके गुलाम मार डाले गए हैं तो वो डरा के कहीं मुझे भी मार न डाला जाए। उसने हसन की मशकें खोल दी, उसके फटे पुराने कपड़े उतार कर उसे दूसरे कपड़े पहना दी, उससे सुलह की दरख्वास्त की और कहा कि मैं तुझे वो फन सिखा दूंगा और तुझे तेरे वतन पहुंचा दूंगा। बेटा मैंने जो कुछ किया है उसका बदला मत निकाल। हसन बोला कि अब मैं तेरा क्यों कर यकीन कर सकता हूँ। उसने कहा कि बेटा, अगर दुनिया में गुनाह ना होता तो मगफिरत भी ना होती, और मैं तो तेरे सब्र का इम्तिहान कर रहा था, और तुझे ये तो मालूम ही है कि जो खुदा करता है वही होता है। हसन की रिहाई पर मल्हा और ना खुदा खुश हो गए। हसन ने उनको दुआ दी और खुदा की तारीफ की, उसका शुक्र बजा लाया। अब आंधी रुक गई और अंधेरा जाता रहा। कश्ती बाद मुवाफिक के साथ चलने लगी। हसन ने मजूसी से पूछा कि आजमी, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि बेटा, मैं जबल अस्साहब जा रहा हूँ, जहाँ वो अक्सर मिलती है जिसे हम कीमिया बनाते हैं। उसके बाद मजूसी ने हसन के आगे आग रोशनी की कसम खाकर कहा कि अब तुझे मुझसे डरने की कोई वजह नहीं। मजूसी की ये बातें सुनकर हसन खुश हो गया, उसे इत्मीनान हो गया। अब मजूसी उसके साथ खाने पीने बैठने उठने लगा, उसे अपने कपड़े पहनने को दिए। 3 महीने सफर करने के बाद कश्ती ने एक बहुत लंबी खुशकी पर लंगर डाला, जहाँ सफेद, जर्द, नीले, काले और बाकी तमाम रंगों के कंकर पत्थर थे। जो ही कश्ती ने वहां लंगर डाला, अजमी उठ खड़ा हुआ और हसन से कहने लगा कि उतर, हम जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच गए। हसन उठ खड़ा हुआ और अजमी के साथ उतर पड़ा। मजूसी नाखुदा को अपना सामान सुपर्द करके हसन के साथ चल दिए। चलते चलते दोनों कश्ती से दूर नजरों से गायब हो गए। एक जगह ऐसी आई जहां मजूसी बैठ गया और अपनी जेब से एक छोटा सा तबला निकाला जो तांबे का था, और एक रेशमी डोरी जो सुनहरी तारों से बटी हुई थी और उस पर तिलस्मात लिखे हुए थे। फिर उसने उस तबले को बजाया। तबला बजते ही जंगल के पीछे से गिरद उठी। ये देखकर हसन को ताजुब हुआ। वो मजूसी से डरने लगा और उसके साथ उतरने पर पेशीमान हुआ और उसका चेहरा उतर गया। मजूसी ने उसकी तरफ देखकर कहा कि बेटा, तेरा चेहरा क्यों लाल हो गया है? कसम है आग और रोशनी की, अब तुझे मुझसे डरने की कोई बात नहीं। अगर मेरी मुराद बगैर तेरे नाम के पूरी हो सकती तो मैं तुझे हरगिज कश्ती से ना उतारता। खुश हो कि अब तेरे लिए भलाई ही भलाई है, और ये गिरद वो है जिस पर हम सवार होंगे और जो हमें इस जंगल के तय करने में मददगार होगी और हमारी मुश्किल आसान कर देगी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद गर्द फटी और उसमें से 3 असील ऊँटनियां निकली। एक पर अजमी सवार हो गया और दूसरे पर हसन, और तीसरी पर उन्होंने सफर के लिए खाने पीने का सामान रख लिया और 7 दिन तक चलते रहे। एक बड़े मैदान में पहुंचकर वो ठहर गए और एक गुंबद देखकर जो 4 सुर्ख सोने के तंबों पर खड़ा था, ऊँटनियों पर से उतर पड़े। गुंबद के नीचे बैठकर खाया पिया और सुस्ताने लगे। इतने में हसन की नजर एक ऊंची इमारत पर पड़ी। वो कहने लगा कि चचा ये क्या है? मजूसी बोला, ये एक महल है। हसन ने कहा कि आओ इसके अंदर जाकर हम आराम करें और इसकी सैर करें। मजूसी उसके पास मुंह लाकर कहने लगा कि मेरे आगे इस महल का जिक्र मत कर, क्योंकि इसमें मेरा एक दुश्मन रहता है। उसके साथ मुझे एक किस्सा दरपेश है जिसके बयान करने का ये वक्त नहीं। ये कहकर उसने तबला बजाया और ऊँटनियां आ मौजूद हुई। दोनों उन पर सवार हो गए और 7 दिन तक चलते रहे। जब 8वां दिन हुआ तो मजूसी ने कहा कि हसन, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने कहा कि मुझे बादल ही बादल दिखाई देते हैं जो पूरब से पश्चिम तक फैले हुए हैं। मजूसी बोला कि ये बादल नहीं बल्कि एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है जिस पर बादल आकर टकराते हैं। वो इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर कोई बादल नहीं जा सकता। हमारी मंजिल मकसूद यही पहाड़ है, क्योंकि जिस चीज की हमें तलाश है वो इसी पर मिलती है। इसी वजह से मैं तुझे अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि तेरे ही हाथों मेरी मुराद पूरी हो सकती है। ये सुनकर हसन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और मजूसी से कहने लगा कि तुझे कसम है अपने माबूद की और अपने दीन की जिस पर तेरा ईमान है। वो तेरा कौन सा मकसद है जिसकी वजह से तू मुझे यहाँ लाया है? उसने जवाब दिया कि कीमिया की सनत बिला एक बूटी के मुकम्मल नहीं होती, जो ऐसी ही जगह उगती है जहाँ बादल टकरा कर अलग अलग हो जाते हैं, और वो यही पहाड़ है और उसी के ऊपर वो बूटी है। जब हमें वो बूटी मिल जाएगी तो मैं तुझे वो फन सिखा दूंगा। मारे डर के हसन ने कह दिया कि ए मेरे आका, हाँ। मगर वो जिंदगी से हाथ धो बैठा और माँ और रिश्तेदारों और वतन की जुदाई पर रोने लगा।
और इस बात पर पछीमा था कि उसने अपनी माँ का कहना न माना। आखिर दोनों चलते चलते उस पहाड़ के पास जा पहुंचे और उसके नीचे ठहर गए। हसन ने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक महल है। वो मजूसी से पूछने लगा कि यह महल कैसा है। उसने जवाब दिया कि यह जिन्नों और भूत प्रेतों और शैतानों के रहने की जगह है। अब मजूसी अपनी ऊँटनी पर से उतरा और हसन से कहा कि तू भी उतर, और उठकर उसका सर चूमा और कहने लगा कि जो कुछ मैंने तेरे साथ किया है उसका बुरा न मान। जब तू महल में दाखिल होगा तो मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मगर मैं तुझे कसम देता हूँ कि तुझे जो चीज वहां मिले उसमें मेरे साथ धोखेबाजी मत कीजिए। उसमें मेरा और तेरा हिस्सा बराबर का है। हसन ने कहा सर आंखों पर। अजमी ने एक थैला निकाला और उसमें से एक चक्की निकाली और थोड़े से गेहूं निकालकर उस चक्की में पीसे और 3 टिक्कियां बनाई और आग जलाकर उन्हें पकाया। फिर वही तांबे का तबला और डोरी निकालकर तबला बजाया। ऊँटनियां आ मौजूद हुई। उसने उसमें से ऊँटनी को पकड़कर ज़िबा किया और उसकी खाल खींचकर हसन से कहा, ए मेरे बेटे, ए हसन, जो मैं कहता हूँ उसे कान धर कर सुन। उसने कहा, कहिए। मजूसी बोला, इस खाल के अंदर घुस जा, मैं उसे सीकर तुझे जमीन पर डाल दूंगा और सफेद गिद्ध आकर तुझे उठा ले जाएंगे और तुझे उड़ाकर उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे। ले इस छुरी को अपने साथ रख ले। जब वो उड़कर रुक जाए और तुझे यकीन हो जाए कि तू पहाड़ पर पहुंच गया है तो तू खाल चाक करके निकल आइयो। गिद्ध तुझसे डरकर भाग जाएंगे और तू पहाड़ पर नीचे देखकर मुझसे बात कीजिए ताकि मैं बता दूं कि तुझे क्या करना है। उसके बाद उसने 3 टिक्कियां और एक कोजा पानी का उसके साथ खाल के अंदर रख दिया और खाल को सी दिया। सफेद गिद्धों ने आकर उसे उठा लिया और उड़कर पहाड़ पर पहुंचे और उसे वहां रख दिया। जब हसन को यकीन हो गया कि गिद्धों ने उसे पहाड़ पर रख दिया है तो उसने खाल चाक कर दी और उसमें से निकलकर मजूसी को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर मजूसी इतना खुश हुआ कि मारे खुशी के नाचने लगा और कहा कि पीछे की तरफ जा और जो कुछ तुझे नजर पड़े मुझसे कह। हसन ने जाकर देखा कि बहुत सी सड़ी हुई हड्डियां पड़ी हैं और उनके पास बहुत सी लकड़ियां हैं। उसने मजूसी से कहा कि उसे ये चीजें दिखाई देती हैं। मजूसी बोला कि बस यही मेरा मकसद है, उन लकड़ियों के 6 गट्ठर बांधकर मेरे पास फेंक दे, उन्हीं से हम कीमिया बनाते हैं। जब हसन ने 6 गट्ठर बनाकर फेंक दिया और मजूसी ने देख लिया कि वो उसके पास पहुंच गए हैं तो हसन से कहने लगा, ए मौत के शिकार, जो मेरी मर्जी तुझसे थी वो पूरी हो गई। अब ख्वाह तू पहाड़ पर बैठा रहे और ख्वाह जमीन पर कूद कर मर जा। ये कहकर मजूसी चलता बना। हसन ने लाहौल पढ़ी और कहा कि ये कुत्ता मेरे साथ चाल चल गया और वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। कभी पहाड़ पर इधर जाता, कभी उधर। उसे यकीन था कि अब मैं हलाक हो जाऊंगा। इसी असना में जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि पहाड़ से मिला हुआ एक नीला समंदर है जो पहाड़ पर बराबर मौजें मार रहा है। वो बैठकर जो कुछ कुरान में से याद था पढ़ने लगा और खुदा से दुआ मांगी कि मेरी मुश्किल आसान कर दे, ख्वाह मौत से या इन मुसीबतों से छुटकारे से। फिर खुद अपने ऊपर जनाजे की नमाज पढ़कर समंदर में कूद पड़ा। मौजों ने उसे ले जाकर खुदा की कुदरत से सही सलामत खुशकी पर पहुंचा दिया। उसने खुदा की तारीफ की, शुक्र बजा लाया और उठकर खाने की कोई चीज ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुंच गया जहां मजूसी ने उसे खाल में सिया था। आगे बढ़ा और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े ऊंचे महल के पास जा निकला। यह वही महल था जिसके बारे में उसने मजूसी से पूछा था और उसने कहा था कि इसमें मेरा एक दुश्मन रहता है। हसन अपने दिल में कहने लगा कि इस महल में जरूर जाना चाहिए, मुमकिन है कि वहां पहुंचकर मुझे खुशी हासिल हो। उसने देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ है और वो दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक चौकी पर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं जो चांद की तरह हैं। उनके बीच में शतरंज की बसात बिछी हुई है और वो खेल रही हैं। उनमें से एक ने सर उठाया और मारे खुशी के चिल्ला उठी कि खुदा की कसम ये इंसान है और मेरे ख्याल में ये वही है जिसे मजूसी बहराम लाया होगा, जिसे मजूसी बहराम यहाँ लाया होगा। उसकी बातें सुनकर हसन उनके आगे गिर पड़ा और जारो जार रोने लगा। ए परिजादो, खुदा की कसम में बेचारा वही हूँ। अब छोटी लड़की ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तू गवाह रही हो कि मैं खुदा से एहदो पेमा करती हूँ कि ये मेरा भाई है। इसकी मौत मेरी मौत है और इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी है। इसकी खुशी मेरी खुशी और इसका गम मेरा गम है। ये कहकर वो उठी और उसे गले लगाकर बोसा दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी बहन के साथ साथ महल में दाखिल हुई। उसके फटे पुराने कपड़े उतारकर शाहाना लिबास पहनवाया और तरह तरह के खाने तैयार करके उसके आगे रखे। उसने और उसकी बहन ने हसन के साथ बैठकर खाना खाया और उसे कहा कि जब से तू उस काफर जादूगर के पंजे में फंसा है उसी वक्त से लेकर उससे छुटकारा पाने तक की दास्तां सुना। उसके बाद हम भी सुनाएंगे कि हमें उसके साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्या पेश आया, ताकि अगर तू फिर उसे देखे तो उससे खबरदार रहे। उनकी ये बातें सुनकर और उनकी आवभगत देखकर हसन की जान में जान आई और उसके होश दुरुस्त हुए और उसने अपना सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया। लड़कियों ने कहा, तूने उससे इस महल के बारे में भी पूछा था?
اس نے جواب دیا ہاں پوچھا تھا، اور اس نے جواب دیا تھا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس پہ شیطان اور ابلیس رہتے ہیں۔ یہ سن کر لڑکیاں تیش میں آ گئی اور کہنے لگی یہ کافر ہمیں شیطان اور ابلیس کہتا ہے۔ حسن نے جواب دیا کہ ہاں۔ چھوٹی لڑکی جو حسن کی بہن بنی تھی بولی کہ قسم ہے خدا کی کہ میں اسے ایسی بری موت ماروں گی کہ پھر اسے دنیا نصیب نہ ہوگی۔ حسن نے پوچھا کہ تیری پہنچ اس تک کیسے ہوگی اور تو اسے کس طرح قتل کرے گی؟ وہ تو بڑا مکار جادوگر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشید نامی باغ میں رہتا ہے اور میں اسے عنقریب مار ڈالوں گی۔ اس کی بہن بولی کہ حسن سچ کہتا ہے اور جو کچھ بھی اس نے اس کتے کے بارے میں کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اسے ہماری ساری داستان بھی سنا دے تاکہ وہ بھی اس کے ذہن میں رہے۔ اب چھوٹی بہن نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرے بھائی، ہم شہزادیاں ہیں اور ہمارا باپ جنوں کا ایک عظیم شان بادشاہ ہے اور اس کے پاس دیووں کا بہت بڑا لشکر ہے۔ خدا نے اسے ایک ہی بیوی سے 7 بیٹیاں دی ہیں اور اس میں اتنی غیرت اور رشک اور رحمیت ہے کہ اس نے ہماری شادی بھی اب تک کسی سے نہیں کی۔ ایک بار اس نے اپنے وزیروں اور مصاحبوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ کیا تم مجھے کسی ایسی جگہ کا پتہ دے سکتے ہو جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو سکتی ہو، نہ انسانوں کی اور نہ جنات کی، اور جہاں بہت سے درخت اور میوے اور چشمے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ تو اسے کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی 7 بیٹیوں کو وہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جبل صاحب کا محل ان کے لیے مناسب ہوگا، جسے ان جنوں میں سے ایک جن نے بنایا تھا جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ جب سے وہ مارا گیا ہے اس میں کوئی نہیں رہتا، نہ انسان نہ جن، کیونکہ وہ اتنی دور ہے کہ کسی کی پہنچ نہیں۔ اس کے ارد گرد درخت اور پھل اور چشمے ہیں جن کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سرد ہے۔ اگر کسی کو کوڑ وغیرہ ہو اور وہ اس پانی کو پی لے تو فوراً اچھا ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے باپ نے یہ سنا تو ہمیں اس محل میں بھیج دیا اور ہمارے ساتھ بڑا لاؤ لشکر کر دیا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ جب وہ سوار ہونا چاہتا ہے تو ڈھول بجتا ہے اور ساری فوجیں آ کر اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہیں اور وہ ان میں سے چن لیتا ہے کہ کون کون اس کے ساتھ سوار ہو۔ باقی لوگ لوٹ جاتے ہیں، اور جب ہمارا باپ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ اپنے ماتحت جادوگروں کو حکم دیتا ہے کہ ہمیں آ کر لے جائیں، اور وہ ہمارے پاس آ کر ہمیں اس کی خدمت میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم اس جگہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہماری باقی 5 بہنیں بھی ہیں جو اس وقت جنگل میں شکار کرنے کو گئی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں بے شمار جنگلی جانور ہیں۔ ہم میں سے 2 باری باری کھانا پکانے کے لیے یہاں ٹھہر جاتی ہیں۔ آج میری اور میری اس بہن کی باری ہے اور ہم کھانا پکانے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ ہم خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ وہ کسی انسان کو یہاں بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ خوش ہوں۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے تجھے ہمارے پاس بھیج دیا، تجھے یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ یہ سن کر حسن خوش ہو گیا اور کہنے لگا شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے چھٹکارے کے راستے پر لگا دیا اور اپنے بندوں کے دلوں کو میری طرف سے نرم کر دیا۔ اب اس کی بہن اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں سے ایسے ایسے لباس اور فرش نکال کر لائی جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بہنیں بھی سیر و شکار سے لوٹیں۔ اس نے ان سے حسن کا ذکر کیا، وہ بھی خوش ہوئیں اور کمرے میں جا کر اسے سلام کیا اور اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ حسن ان کے ساتھ بڑے عیش و عشرت سے رہنے لگا، ان کے ساتھ سیر و شکار کو جاتا اور شکار کو مار کر ذبح کرتا۔ غرض کہ بہت جلد وہ ان سے مانوس ہو گیا اور ان کے ساتھ رہتے رہتے اس کے بدن میں توانائی بھی آ گئی، رنگ روپ نکل آیا اور وہ ان کے ساتھ اس خوبصورت محل میں سیر کرتا، باغوں اور پھولوں کے مزے لیتا، اور وہ اس کی خاطر تواضع کرتی، بات جیت سے اس کا دل بہلاتی۔ اس سے اس کے دل کی گھبراہٹ جاتی رہی اور لڑکیاں اس کی وجہ سے خوش و خرم رہنے لگی۔ جتنی ان کو اس سے خوشی ہوتی اس سے زیادہ اسے ان سے۔ اس کے بعد چھوٹی بہن نے بہرام مجوسی کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اس نے ہمیں شیطان اور ابلیس اور بھوت بتایا ہے۔ اس پر سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہم اسے بے قتل کیے نہ مانیں گے۔ جب دوسرا سال ہوا تو وہ ملعون ایک خوبصورت مسلمان جوان کو لے کر آیا جو چاند کا ٹکڑا تھا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور وہ سخت تکلیف میں تھا۔ اس جوان کو لے کر وہ اسی محل کے نیچے اترا جہاں حسن لڑکیوں کے ساتھ تھا۔ حسن درختوں کے نیچے ایک چشمے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجوسی کو دیکھ کر حسن سنار کا دل دھڑکنے لگا، اس کا رنگ لال ہو گیا اور وہ ہاتھ مالنے لگا، اور اس نے لڑکیوں سے کہا کہ بہنوں، خدا کے لیے اس ملعون کو قتل کرنے میں میری مدد کرو۔ دیکھو وہ آ گیا ہے اور تمہارے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ ایک جوان مسلمان قیدی ہے جو کسی بڑے آدمی کا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ مجوسی اسے سخت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے قتل کر دوں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے اور جوان کو اس کے ہاتھوں تکلیف سے چھٹکارا ملے، میں ثواب لوں گا۔ اور مسلمان جوان اپنے وطن واپس جا کر اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے ملے۔ یہ تمہاری طرف سے خیرات ہوگی اور خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ لڑکیاں بولیں کہ اے حسن، تیرا اور خدا کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالی اور ہتھیار لگا کر کمر سے تلواریں باندھ لی
और हसन के लिए बेहतरीन घोड़ा मंगवा कर उस पर 4 जामा कसा और हसन के उम्दा उम्दा हथियार बांधे। उसके बाद सब चल खड़े हुए। उन्होंने देखा कि मजूसी एक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल खींच चुका है और जवान को सख्त तकलीफ दे रहा है और उसे कह रहा है कि इस खाल के अंदर घुस। इतने में हसन पीछे से आ पहुंचा। मजूसी को उसकी खबर तक न हुई और इस जोर से ललकारा कि उसकी अकल जाती रही। वो बदहवास हो गया। अब हसन ने आगे बढ़कर कहा, ए मलून, ए खुदा और मुसलमानों के दुश्मन, ए कुत्ते, ए धोखेबाज, ए आतिश परस्त, ए गुनाहगारों के रास्ते पर चलने वाले, अपना हाथ रोक। जब तू आग और रोशनी की पुरस्तिश करता है और धूप छांव की कसम खाता है। मजूसी ने मुड़कर देखा और जो ही उसकी नजर हसन पर पड़ी वो कहने लगा, बेटा तू कैसे छूट कर जमीन पर उतर आया? हसन ने जवाब दिया कि एक आफर जंदीक, मुझे उस खुदा ने छुड़ाया जो तेरी जान इसी तरह तेरे दुश्मनों के हाथ से लेगा जिस तरह तूने मुझे रास्ते पर तकलीफें पहुंचाई है। अब तू मुसीबत में आ फंसा है और रास्ता भूल गया है। अब न माँ तुझे पैदा पहुंचा सकती है, न भाई, न दोस्त, न कोई पक्का अहदो पेमा। तेरा ही कौल है कि जो कोई रोटी और नमक में खयानत करता है खुदा उसका बदला लेता है। तूने रोटी और नमक में खयानत की है, इसलिए खुदा ने तुझे मेरे हाथ में दे दिया और अब तेरा छुटकारा मुझसे नामुमकिन है। मजूसी ने कहा कि बेटा खुदा की कसम में तुझे अपनी जान और अपनी आंखों की रोशनी से ज्यादा अजीज रखता हूँ। हसन ने कुछ नहीं सुना, बढ़कर उसे फुर्ती से उसकी गद्दी पर वार किया कि तलवार चमकती हुई उसकी गर्दन के आर पार हो गई और खुदा ने उसकी रूह को फौरन दोजख में पहुंचा दिया जो बुरी रहने की जगह है। उसके बाद हसन ने वो थैला लिया जो मजूसी के पास था और उसे खोलकर उसमें से तबला और डोरी निकाली और डोरी से तबला बजाया। उस पर ऊँटनियां बिजली की तरह हसन के पास आ पहुंची। उसने जवान की मशकें खोलकर उसे एक ऊँटनी पर बिठाया और दूसरी पर खाने पीने का सामान बांधकर उससे कहा कि अपने वतन जा। जो ही खुदा ने उसे हसन की बदौलत तकलीफ से निजात दी वो रवाना हो गया। जब लड़कियों ने देखा कि हसन ने मजूसी की गर्दन उड़ा दी है तो वो मारे खुशी के उसके इर्द गिर्द फिरने लगी और उन्हें उसकी बहादुरी और कुव्वत पर बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने इस कारगुजारी पर उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और कहा कि ए हसन, तूने वो काम किया है जिससे बीमार शिफा पाते हैं और खुदा खुश होता है। अब वो लड़कियों को लेकर महल में गया और उनके साथ खाने पीने हंसी मजाक में मशगूल हो गया और उनकी सोहबत में उसे इतना मजा आया कि वो अपनी माँ को भूल गया। वो उनकी सोहबत के मजे उड़ा ही रहा था कि इतने में जंगल की तरफ से ऐसी गिरद उड़ती दिखाई दी कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। लड़कियों ने कहा, ए हसन, उठ और अपने कमरे में जाकर छुप जा, वरना बाग में जाकर दरख्तों और अंगूर की बेलों में छुप कर रहे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हसन जाकर अपने कमरे में छुप रहा और उसे अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद गिरद फटी और उसमें से मुतलातिम समंदर की तरह एक जबरदस्त लश्कर निकला जो उस बादशाह के पास से आया था जो इन लड़कियों का बाप था। जब लश्कर वारिद हुआ तो लड़कियों ने उन्हें बेहतरीन जगह ठहराया और 3 रोज तक उनकी दावत की। फिर उनसे खैरियत खबर पूछी। उन्होंने जवाब दिया कि हम बादशाह के पास से तुम्हें लेने आए हैं। लड़कियों ने पूछा कि बादशाह हमसे क्या चाहता है। उन्होंने जवाब दिया कि एक बादशाह के यहाँ जश्न मनाया जा रहा है और वो चाहता है कि तुम भी आकर उसमें शरीक हो। लड़कियों ने पूछा कि हमें कितने दिन लगेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि जाना आना और 2 महीने। लड़कियां उठकर महल में हसन के पास गईं। उससे सारा माजरा बयान करके कहा कि ये मकान तेरा मकान है और हमारा घर तेरा घर है। तू खुश और इत्मीनान से रहे। डरने घबराने की कोई बात नहीं, किसी की मजाल नहीं कि इस जगह आ सके। हर किस्म का सामान यहाँ मौजूद है। हम अपने कमरों की कुंजियां तेरे पास छोड़े जाते हैं। लेकिन ये भाई, तुझे भाईचारे की कसम, फिलहाल दरवाजे को न खोलियो क्योंकि उसका खोलना तेरे लिए बेकार है। यह कहकर हसन से रुखसत हुई और लश्कर के साथ रवाना हो गई। हसन महल में अकेला रह गया और उनकी जुदाई की वजह से घबराने लगा। महल इतना बड़ा होने के बावजूद उसे तंग मालूम होता था। उसे वहशत होने लगी। लड़कियों के चले जाने के बाद हसन अकेला रह गया तो उसकी तबीयत घबराने लगी। वह अकेला सैरो शिकार के लिए जाता, शिकार मारकर उसे ज़िबा करता और अकेला खाता। जब तन्हाई की वजह से उसे वहशत और घबराहट होने लगी तो वो उठकर चारों तरफ घूमने लगा। दिल पेराने के गर्ज से उसने लड़कियों के कमरे खोले और देखा कि उनमें इतनी दौलत भरी पड़ी है कि जिसका हिसाब अकल भी नहीं कर सकती। लेकिन लड़कियों के ना होने की वजह से उसे उसका कोई मजा ना आया। जिस दरवाजे के बारे में उसकी बहन ने कहा था तो उसे हरगिज न खोलियो बल्कि उसके पास तक न भटकियो। उसके लिए हसन के दिल में एक आग सी लगी हुई थी और वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बहन ने इस दरवाजे को न खोलने के लिए जरूर इस वजह से कहा होगा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो वो नहीं चाहती कि कोई देखे। कसम है खुदा की, मैं इसे खोल कर देखूंगा कि इसमें क्या चीज है, ख्वाह मौत ही क्यों ना हो। ये कहकर उसने कुंजी से वो कोठरी खोली और देखा कि उसमें माल और दौलत कुछ भी नहीं। लेकिन गौर जो किया तो अंदर एक जीना दिखाई दिया जो सलेमानी पत्थर का बना हुआ था। उस जीने पर चढ़कर वो महल की छत पर पहुंच गया और अपने दिल में कहने लगा कि उन्होंने बस इसीलिए मुझे मना किया था। अब वो छत पर घूमने फिरने लगा और उसने देखा कि महल के नीचे
بہت سے کھیت اور باغ اور درخت اور پھول اور جانور چڑیائیں ہیں جو چہچہا رہی ہیں، اور وہ یکتا اور زبردست خدا کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ وہ ان سیرگاہوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اسے بہت بڑا موجن سمندر دکھائی دیا۔ وہ اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے لگاتے ایک بیٹھک کے پاس پہنچا جس کے نیچے 4 کھمبے تھے اور اوپر ایک چبوترا تھا جس میں یاقوت اور زمرد اور بلخش اور طرح طرح کے جواہرات کے نقش و نگار تھے، اور ایک ایک اینٹ سونے چاندی یاقوت اور زمرد کی تھی۔ اس بیٹھک کے بیچ میں ایک حوض تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، جس کے ارد گرد صندل اوت کی چوکٹیوں میں سرخ سونے اور ہرے زمرد کی جالیاں لگی ہوئی تھی جن میں کبوتر کے انڈوں کے برابر طرح طرح کے ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ حوض کی ایک طرف اوت کا ایک درخت پڑا ہوا تھا جو موتی اور جواہرات سے مرصع تھا، کندن کی جالیاں تھی اور رنگ برنگ کے جواہرات سے ایسا جڑاؤ کہ آدمی دیکھا کرے۔ حوض کے چاروں طرف چڑیا مختلف آوازوں میں گا رہی تھیں اور ان کی خوش الہانی اور چہچہے اللہ اللہ اپنی بولیوں میں ہی خدا کی پاکی کے نغمے گائے جا رہے تھے۔ اس محل کا جواب نہ کسرا کے پاس ہوگا نہ کیسر کے پاس۔ حسن اسے دیکھ کر دنگ ہو گیا اور بیٹھ کر ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ وہ بیٹھا ہوا اس کی خوبصورتی پر تعجب کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل سے محل کی طرف 10 چڑیا آئیں۔ حسن سمجھا کہ وہ حوض پر پانی پینے آ رہی ہے۔ وہ اس ڈر سے چھپ گیا کہ کہیں اسے دیکھ کر وہ بھڑک نہ جائے۔ اب چڑیائیں اتر کر ایک خوبصورت درخت کے گرد پھدکنے لگی۔ حسن نے دیکھا کہ ان میں ایک چڑیا اوروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے جس کے ارد گرد دوسری چڑیاں اڑ رہی تھی۔ حسن کو بڑی حیرت تھی کہ وہ چڑیا باقی 9 چڑیوں پر چونچ مارتی اور ان پر اپنی بڑائی جتاتی ہے اور وہ اس سے بھاگتی ہیں۔ حسن دور کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اب وہ ساری چڑیائیں تخت پر بیٹھ گئی اور پنجوں سے اپنی اپنی کھالیں پھاڑنے لگی اور پروں کا لباس اتار کر 10 پاکیزہ لڑکیاں بن گئی جن کے حسن کے آگے چاند بھی مات تھا۔ برہنہ ہو کر وہ سب حوض میں اتری اور نہانے کھیلنے اور ہنسی مذاق کرنے لگی۔ سردار چڑیا انہیں دھکیلتی اور ڈبکیاں دیتی اور وہ اس سے بھاگتی، مگر ان کی یہ مجال نہ ہوتی کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ حسن اس کو دیکھتے ہی لڈو ہو گیا۔ اس کے حواس جاتے رہے اور اسے یقین آ گیا کہ لڑکیوں نے اسی وجہ سے منع کیا تھا کہ میں اس دروازے کو نہ کھولوں۔ اس کی رعنائی، باقی ادائیں اور حسن کا انداز دیکھ کر حسن کی طبیعت بے چین ہو گئی۔ دل ہاتھ سے جاتا رہا، کھڑا دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اور یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ ہوش ٹھکانے نہ تھی، کلیجہ دھڑک رہا تھا، آنکھ دیکھنے میں مہو تھی اور تن بدن میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور اس کا نفس برے کام کا حکم دے رہا تھا۔ وہ اس نوبہار حسن کی گل چینی کے اشتیاق میں رونے لگا اور سر سے پاؤں تک بھٹی بن گیا اور ایسے شعلے اٹھنے لگے جن کا بجھانا مشکل پڑ گیا۔ عشق نے ایسے ٹوکے لگائے جس کا اثر چھپائے نہ چھپ سکا۔ اب لڑکیاں ہاؤس سے باہر آئیں۔ حسن انہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے نہ دیکھ سکتی تھی۔ پانی سے نکل کر سب نے اپنے اپنے کپڑے اور زیور پہن لیے۔ بڑی نے ایک سبز پوشاک زیب جسم کی اور دنیا کی تمام حسینوں سے حسین تر معلوم ہونے لگی، اور 4 کی لچک میں وہ ٹہنیوں پر سبقت لے گئی اور عقل اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر حسن کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ جب لڑکیاں اپنے کپڑے پہن چکی تو بیٹھ کر بات چیت اور ہنسی مذاق کرنے لگی۔ حسن کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا اور اپنے عشق کے سمندر میں غرق تھا اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم، میری بہن نے انہی لڑکیوں کی وجہ سے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان دروازوں کو نہ کھولوں تاکہ کہیں میں ان میں سے کسی سے پھنس نہ جاؤں۔ اب حسن اس کے ایک ایک عضو کو دیکھنے لگا۔ اس کا منہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح تھا، کالے کالے بال جیسے عاشق کے اوپر ہجر کی رات، پیشانی رمضان کے عید کا چاند، آنکھیں جیسے غزالوں کی آنکھیں، ناک ستون اور چمکدار، دونوں رخسار شقائق النعمان، دونوں ہونٹ مرجان، دانت موتی کی لڑی، گلا بید کی شاخ کے اوپر چاندی کا ڈالا، رانے موٹے موٹے مرمر کے ستونوں کی طرح جیسے شتر مرغ کے پروں سے بھرے ہوئے 2 تکیے۔ یہ لڑکی بید کی شاخوں اور خیزان کی چھڑیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ لڑکیاں خوش کلیاں کرتی رہیں اور حسن برابر کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ کھانا پینا تک بھول گیا تھا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا اور اس لڑکی نے اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ اے شہزادیوں، رات ہونے کو آئی ہے، ہمارا ملک دور ہے اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تھک بھی گئی ہے، چلو اب ہم گھر چلیں۔ سب نے اٹھ کر پروں کی پوشاک پہن لی اور پہلے کی طرح چڑیا بن کر ایک ساتھ اڑ گئیں۔ آس پاس دوسری تھی اور بیچ میں وہ لڑکی۔ جب حسن ان سے ناامید ہو گیا تو اس نے چاہا کہ اٹھ کر نیچے اترے، لیکن اس میں اٹھنے تک کی سکت نہ تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بہرحال حسن آہستہ آہستہ چلنے لگا اور الٹا سیدھا چلتے چلتے محل کے نیچے اترا اور بڑی مشکل سے کوٹھڑی کے دروازے تک پہنچا اور اندر جا کر اسے بند کر لیا۔ بیمار ہو کر لیٹ گیا، نہ کھاتا نہ پیتا بلکہ فکر میں ڈوبا رہتا۔ پھر وہ رونے پیٹنے لگا اور رات بھر روتا پیٹتا رہا۔ جب صبح ہوئی اور سورج نکلا تو اس نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا اور اسی جگہ پہنچا جہاں وہ کل گیا تھا اور اسی منظر کے سامنے رات تک بیٹھا رہا، لیکن کوئی چڑیا نہ آئی۔ وہ زاروں زار رونے لگا، یہاں تک کہ گچ کھا کر زمین پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو گھسٹتا ہوا محل کے نیچے اترا۔ رات ہو گئی تھی
اور وہ ہر چیز اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ رات بھر برابر روتا اور آہذاری کرتا رہا، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا۔ ٹیلوں پر اور گھاٹیوں میں دھوپ نکل آئی۔ وہ نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ اسے چین آتا، بلکہ دن بھر پریشان رہتا اور رات بھر بیدار، مغموم اور بے چین۔ جب حسن سنار کا عشق بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ برابر اشعار پڑھا کرتا، اور چونکہ وہ محل میں اکیلا تھا اس کا دل ہرگز نہ بہلتا۔ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ اسے جنگل کی طرف سے گرد اڑتی دکھائی دی۔ وہ نیچے آ کر چھپ گیا اور اسے یقین ہوا کہ محل والے آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لشکر اتر کر محل کے آس پاس پھیل گیا۔ دوستو، اس کہانی کو یہی ختم کرتے ہیں اور اس کا دوسرا پارٹ بناتے ہیں۔ دوستو، بقیہ کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ ہمارا حصہ بن جائیں گے اور اس سے ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی۔ بقیہ کہانی کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔